and you can switch on the video. Everybody, if possible, can switch on their videos. Hare Krishna. So welcome everybody. Today we have come together for hearing about how Nikhilesh Prabhu came in Krishna consciousness, especially when we hear that how a devotee came in Krishna consciousness, then it helps us in our own life to know that how Krishna is working in the life of a devotee. Because Krishna, when the day somebody surrenders to Krishna, the same day Krishna takes charge of that person. Our surrender may not be complete, but Krishna starts taking care of us based on our surrender. So whatever it may be, because we have come to Krishna consciousness, somehow we are starting to chant and follow few of the principles, co-regulative principles and other principles. So this helps us in getting the mercy of Krishna. Sometimes we feel that we are trying to chant, we are trying to follow everything, but we are not able to do anything nicely. But all we are doing is to trying to attract the mercy of Krishna. Like a child, if he asks the mother, "Mother, I want to cook today." So the cooking won't be as good as the mother. But when the child cooks for the mother, mother gets pleased and uh, she tells that, "Oh, my boy has cooked today. It will be so nice. The food is so nice," she'll tell. Rather, she knows, although she knows that the food she cooks is very more delicious. Still, when the son cooks, she feels good. So similarly, when we do something, it attracts Krishna's mercy, and whatever practices Nikhilesh Prabhu and other devotees are doing, it is appreciative. I know Nikhilesh Prabhu since last almost 4 years, since the time I came to Bhubaneswar. I have been seeing him very sincere and regular and punctual, disciplined, very calm all the time. And he used to always be very respectful to every devotee. And never I have seen him in a raised voice. And in this way, I was very attracted to him. And I thought that if such a devotee can continue in our preaching mission, then it will be a good asset for us. So happy to have Nikhilesh Prabhu in ISKCON Bhubaneswar team. Welcome and hope and wish that your new birthday, this means your coming year, starting from today, be very, very blessed one. And may you get all the mercy of Lord Krishna and Srila Prabhupada. Hare Krishna. So now I know everybody wants to speak anything. If all of a sudden somebody wants to speak something, you can speak 1-2 minutes. Then we'll let Nikhilesh Prabhu speak. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. तो निखिलेश प्रभु, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं हैं। तो जन्मदिन तो ऐसे बहुत आएंगे और जाएंगे, मतलब आपसे हमने इन दिनों जो सीखा है वो एक चीज सीखा है जो मुझ में ज्यादा नहीं है, वो है कि आप हमेशा से एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलते हैं, मगर मतलब जो कहते हैं उसको कभी नकारते नहीं हैं। तो हम थोड़ा डिफेंसिव है, हम ज्यादा माइंड लगाते हैं सारे चीज में, ऐसा ये क्यों है वो क्यों है, मगर जो एक भक्त का लक्षण है वो आप में है। तो ये भगवान श्री कृष्ण और प्रभुपाद का कृपा है। तो आप बखूबी उनको उनकी सेवा में लगा रहे हैं, तो धन्यवाद। आगे भी ऐसे प्रे करें कि हम भी इस तरह कुछ कर सके। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद।
किसी और को कुछ बोलना है तो एक बार बोल सकते हैं अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण निखिलेश प्रभु जी, जन्मदिन की बोलो। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मैं तो आपके बारे में से बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन थोड़ा सा जो प्रभु जी जैसे बोले कि आप बहुत काम है, वो पता चलता है। और आशा करता हूँ कि आप इस साल अपना जो कृष्ण चेतना में बहुत आगे बढ़े और प्रभुपाद के और कृपा के पात्र बने। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। निखिलेश प्रभु जी, आपको जन्मदिन में बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। तेणु अनिल प्रभु सदैव प्रभु आपणक बारे में बहुत किसी कहीदे जाइछन्ति। तेणु आपण बहुत अनिल प्रभु कहला भाले आपण बहुत काम एंड बहुत सिंसियर डिवोटीज। तेणु प्रभु पाखरे प्रार्थना जे आपण से भली आपण न्यू लाइफ न्यू एज लाइफ एटा हमें कहूचे, एटा आपणकर भाबरे बहुत खुशी रे एवं बहुत कृष्ण चेतना सहित अटैच हेगी पितु। हरे कृष्ण बाबू जी। Niklesh Prabhu, wishing you the happy Krishna's birthday. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Wish you many happy Krishna conscious birthday, Prabhu. But I did not get your association. But I, from some days, I would say that you are joining every day and cooperating each other. See that you helping Krishna and spreading the Krishna mercy. Like the yesterday we talked about Krishna Prem plot, which is most topmost. क्या है वो उसको बोलते हैं, जो कृष्ण प्रेम को वही समझ सकते हैं जो भगवान को समझते हैं। तो आपको कृष्णा जितना में प्रभुपाद को हेल्प करते हैं तो वही सबसे बड़ी हमारे लिए और भी क्या हो सकता है। अब प्रभुपाद के मिशन को हेल्प कर रहे हैं तो इट इज सबका भी हमारा यही है कि प्रभुपाद के मिशन को कैसे आगे बढ़ाना है। तो कभी फ्यूचर में भी कैसा ऐसा मेरे को चांस मिला कि आपसे एसोसिएशन मिलेगा, यही एक प्रार्थना है कि आपके साथ एक चांस मिले, आपके दर्शन मिले, क्योंकि शुद्ध भक्त के दर्शन होते हैं तो क्या कहना। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण हैप्पी कृष्णा बर्थडे टू यू मुझे। हरे कृष्ण। ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ पर मतलब आपकी मीठी आवाज से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। आप शास्त्र को इतने अच्छे से करते हैं, काफी दूर से दूर चीज को निकाल कर हमारे सामने रखते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप जैसे एक शुद्ध आत्मा है। और आपके सामने से हम भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं यहाँ पे, और आशा करते हैं कि आगे भी बहुत सारी चीजें आपसे सीखेंगे और आप इसी तरह आने वाले समय में भक्ति में प्रगति करते रहें और प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से आप ऐसे ही जुड़े रहें और सबको मार्गदर्शन देते रहें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे निखिलेश प्रभु। भगवान के पास ये प्रार्थना है कि आप ये स्पिरिचुअल पाथ में बहुत आगे में बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सबको उनके बारे में विश करने के लिए, उनको और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। हरे कृष्णा। तो मैं अभी निखिलेश प्रभु को बोलूंगा कि आप कैसे आए कृष्ण भक्ति में उसको बताएं, और आपको भी आपके कुछ रिजोल्यूशन लेना है जन्मदिन से। मैं ऐसे भक्ति में कुछ और दृढ़ता बनाने के लिए कुछ और नियमित रूप से करूंगा,
या फिर अभी जो कर रहा हूँ उसको अच्छे से करूँगा, जो अपनी राउंड्स है, अपना रीडिंग है, अपना सेवा है, उसको कैसे मैं अच्छे से करूँगा, ऐसा कुछ भी आपका है तो बोल सकते हैं आज, क्योंकि वो प्रार्थना के साथ आपको मिल जाएगा वो आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभु जी ऑडिबल हो? Am I audible? यस यस। तो धन्यवाद देता हूँ। और मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वैष्णव लोगों का कंपैशन जो है, जो हमेशा हम शास्त्रों में सुनते हैं कि वैष्णव लोग जो है वो बहुत ही कंपैशनेट हैं, वो दिख रहा है इस बात से, वो हमेशा ही दिख जाता है, पता लग जाता है। वैष्णव लोग ही ऐसे बात करते हैं, क्योंकि जड़ जगत में हम रहते हैं, इस प्रकार का तो देखने को नहीं मिलता। सब ने जो भी बोला है मेरे बारे में, कोई एक भी क्वालिटी कुछ है नहीं मुझ में, लेकिन ये उनका कंपैशन है कि वो ऐसा बोल रहे हैं, और वो ऐसा बोल रहे हैं तो क्या पता, हो सकता है एक दिन ऐसा सत्य हो जाए कि वो क्वालिटीज आ जाए मुझ में। और कोई काम या कोई कुछ भी मैं नहीं हूँ, सब कुछ है नहीं। ये वैष्णव लोगों की उनकी कंपैशन है कि ऐसे बोल रहे हैं, तो हो सकता है भगवान उस बात को सत्य कर देंगे। तो ये है कि प्रभु जी ने कहा कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में मैं कैसे आया, तो मैं तो आया नहीं हूँ, मुझे ये वैष्णव लोग हैं वो मतलब खींच रहे हैं, और अभी भी खींच रहे हैं। मैं इस माया में ही हूँ, तो मैं कहीं आया नहीं हूँ। मुझे इस एक प्रकार से ऐसा ही है। लेकिन फिर भी क्योंकि अमृतेश प्रभु जी मुझे बोले, अमृतेश प्रभु जी, थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा। बचपन में मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा फर्टाइल मेरा बैकग्राउंड रहा है एक प्रकार से, क्योंकि मेरे पापा से जो है मैं 4 साल की आयु से लेके 16-17 साल की आयु तक पापा के पास सोता था रात को। हर रोज वो बोलते थे कृष्ण के बारे में, राम जी के बारे में, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम की कथाएं वो बोलते थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई तत्व के आकार में तत्व कॉन्सेप्ट तो क्लियर था नहीं, लेकिन वो नैरेशन सुन सुन के ऐसा हो गया था कि थोड़ा सा मतलब भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं था। और इस बात को, हालांकि ये पता नहीं था कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो कॉन्सेप्ट था मेरा मायावादी कॉन्सेप्ट ही था कि 33 करोड़ गॉड्स हैं, ये सब इस प्रकार का सोचता था। मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग जो था वो एकदम फॉल्स था। लेकिन फिर भी एक क्योंकि नरेशन सुना था, तो एक लाइकिंग था कृष्ण के प्रति, एक श्रद्धा थी कि मतलब ये बहुत अच्छा है, ये आध्यात्मिक जीवन जो है बहुत अच्छा है, और कृष्ण वो हैं, मुझे इतना पता था। ऐसा नहीं है कि है नहीं, पता नहीं कहाँ है भगवान, ये मैं नहीं मानता, ऐसी ये सब कुछ नहीं था। बहुत विश्वास था, तो हमेशा मेरे पास हैं ऐसा लगता था। तो ऐसा था। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, कॉलेज में गया, लेकिन कॉलेज के समय में क्या होता है कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से, कलयुग है तो उस कारण से थोड़ा सा आदमी इतना मतलब नहीं रहता, उसको आध्यात्मिकता में इतनी रुचि थी नहीं। लेकिन फिर भी किस तरह ऐसे ही चल रहा था बस। और मुझे जब स्मार्टफोन मिला, जब इंटरनेट कनेक्शन आया मेरे पास, मैं हमेशा खोजता था कृष्ण के बारे में कथा, तो खोज खोज के सुनता था। लेकिन उस समय पता नहीं था कि शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में सुनना चाहिए, और पता भी नहीं था कि परंपरा क्या होता है, वैष्णव संप्रदाय क्या होता है। ऐसे 4 वैष्णव संप्रदाय होते हैं, ऐसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, श्रीमन महाप्रभु का संप्रदाय है, और समस्त संप्रदाय का जो सार है वो इस संप्रदाय में है। ये सब कुछ पता नहीं था। श्रीमन महाप्रभु के विषय में भी पता नहीं था, क्योंकि वो जो फुलिश किताबें हैं स्कूल के, वो ऐसे सिखाए थे कि चैतन्य महाप्रभु कोई साधु थे, कोई ऐसे, तो ऐसे बेकार की बातें, कोई रियल कॉन्सेप्ट था नहीं। तो ऐसे चल रहा था। तो क्या हुआ कि जब, जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, विदाउट कृष्ण देयर इज नो हैप्पीनेस, द ओनली वे टू बी हैप्पी इज इफ यू आर कनेक्टेड टू कृष्ण। तो कनेक्टेड तो मैं था नहीं, तो इस कारण से खुश था नहीं जीवन में। तो मैं ये मुझे समझ पा रहा था, कॉलेज में था, बीटेक में था मैं उस समय, और मैं समझ पा रहा था कि मेरे जीवन में जो है वो मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मौत से बहुत डरता था मैं, मृत्यु से, कि मैं सोचता था कि मैं कभी-कभी ऐसे सोचता था कि मैं जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ, जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ, इस बार भी मैं जन्म लिया हूँ, इस बार भी मैं मर जाऊँगा, फिर आगे भी जन्म लूँगा, मर जाऊँगा। ये तो बहुत ही, ये प्रक्रिया जो है, बहुत ही भयानक प्रक्रिया है यार। ये मतलब ऐसा ही चलता रहेगा क्या? ये तो बहुत खराब है। ये तो मतलब मुझे बहुत डर लगता था ऐसे सोच के। तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा?
तो जीवन का तो कुछ होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, ऐसे कैसे मर जाऊंगा मैं, खाली मतलब ऐसे पैसे कमाते कमाते मर जाऊंगा क्या? तो ऐसे सोच के बहुत खराब लगता था, बहुत बुरा लगता था, बहुत डिप्रेस था एक तरह से, कुछ है नहीं, स्पिरिचुअलिटी की क्वालिटी की कमी है। और उस समय ये भी नहीं पता था कि कृष्ण कॉन्शियसनेस की कमी है, क्योंकि ये जो कृष्ण चेतना शब्द का भी पता नहीं था उस समय। तो एक दिन ऐसी कृष्ण की कृपा से मैं जा रहा था, नॉनवेज मैं छोड़ चुका था उस दिन, बहुत पहले छोड़ चुका था। मेरे नाना जी की डेथ हो गई था, तो उस समय मैं डर के मारे वो सब छोड़ चुका था। हाँ, तो जा रहा था, कॉलेज के समय की बात है, तो एक बुक फेयर में गया, कृष्ण की कृपा में एक इस्कॉन भक्त से मिला। मैं एक बात पहले बता दूं कि जब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ा, पहली बार ऐसा नहीं था कि इस्कॉन भुवनेश्वर में ही आया, वो एक भक्त और थे, उनके पास में गया था। तो वो जो प्रभु जी थे, मैं पहली बार उनसे मिला बुक फेयर में, उनसे पुस्तकें ली, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल इन ओडिया, सॉरी teachings of Lord Kapila in Odia, science of journey of self discovery in English and science of self realization। ये 3 पुस्तकें मैं लिया था और इस्कॉन के प्रति एक एप्रिसिएशन मेरा था। मुझे कुछ पता नहीं था, 2 चीज पता था कि इस्कॉन में हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाता है और कृष्ण की पूजा होती है। इस 2 कारण की वजह से मुझे इतना पता था कि इस्कॉन इज नाइस, इतना बस पता था, और मुझे कुछ नहीं पता था। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में पता नहीं था, महाप्रभु के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन मैं उनसे मिला और पुस्तकें लिया और मैं गया, और उसी बुक फेयर में एक और प्रभु जी से मिला। तो वो जब प्रभुपाद जी की पुस्तकें मेरे हाथ में देखे, मुझे बुलाए और मुझे अपने पास बिठाया, और पास बिठा के बोले कि आप, वो थोड़ी देर में समझ गए कि ये व्यक्ति जो है कुछ जानता नहीं है प्रभुपाद जी के बारे में, उसको कुछ नॉलेज नहीं था, वो समझ गए थे थोड़ी देर में, 1 मिनट मुझसे बात करते। तो मुझे पास बिठाया और बुलाए, बोले श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, कैसे श्रील प्रभुपाद जी जो है वो बौद्ध जीव नहीं है, वो हम लोग की तरह। अब मुझे नहीं पता बौद्ध जीव क्या है, कुछ कुछ तो पता है नहीं। तो उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी हमारी तरह नहीं है, वो भगवत धाम से आए हैं और वो ऐसे कृष्ण चेतना का प्रचार किए हैं, और ऐसे अमेरिका गए थे और उनको कैसे हार्ट अटैक हुआ था, कैसे कृष्ण चेतना प्रचार किए, सब बोले। और उसके बाद बोले यदि हम श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमल में शरणापन्न होंगे तो फिर श्रील प्रभुपाद जी का हम सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, वैष्णव के संग में रहेंगे, और इस जीवन के अंत में प्रभुपाद जी हमें गोलोक वृंदावन ले जाएंगे। तो मैं कहा गोलोक वृंदावन क्या है? मैं तो पहले सुना था ये भूलोक भुवलोक, फिर स्वर्गलोक, तपोलोक, जनलोक, महलोक, सत्यलोक, ये सुना था। इन सबके परे वैकुंठ लोक है, ये मैं सुना था कि वैकुंठ हाईएस्ट है। कि गोलोक वृंदावन क्या है? तो ये सब पहली पहली बार सुन रहा था ना। गौड़ीय वैष्णव एंथोलॉजी के जो शब्द हैं, वो से मतलब ऐसे परम पूज्यपाद हलधर महाराज बोलते हैं कि गौड़ीय वैष्णव शब्द जो है ना, वो किसी संस्कृत अभिधान में भी मिलेगा नहीं। ऐसा ऐसा शब्द प्रयोग किए हैं। संभवतः कृष्णदास कविराज उस समय संभवतः यूज किए, मुझे ठीक से याद नहीं था, कि महाअंध, इस प्रकार का, मतलब ऐसे कई शब्द मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, कि मतलब ऐसे ऐसे शब्द हैं कि संस्कृत डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। तो मैं ये शब्द पहली बार सुन के मैं चौंक रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो 100% ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था, पहली बार है ऑफकोर्स, लेकिन फिर भी किसने इतना तो था कि दिस इज नाइस, जो भी है अच्छा है। तो वह उन्होंने एक जपमाला भी दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना तुम। तो मैं लेके आया। कुछ दिन बाद जो पहले जो प्रभु जी को मिला था, उनसे उन्हें फोन लगाया, फोन लगा के वो बुलाए, गीता क्लास में उनके पास गया, और कुछ ही दिन ही गया था। वो प्रभु जी जो थे वो दरअसल वो भुवनेश्वर के थे नहीं, थोड़ी देर के लिए भुवनेश्वर में रुके थे और प्रचार कर रहे थे, तो वो फिर भुवनेश्वर से शिफ्ट हो गए। और जब वो शिफ्ट हो गए तो फिर मुझे बुरा लगा कि सेपरेशन, मुझे फील होने लगा कि यार मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि भगवत गीता क्लास में जा रहा था, अभी और कुछ नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, ऐसे चलता रहा। तो फिर मैं क्या किया कि श्रीधाम मायापुर गया। 2 बार श्रीधाम मायापुर गया मैं 3 महीने के अंतर, मेरे जस्ट कॉलेज के समय में ही। तो उस समय गया, और मायापुर धाम मुझे बहुत अच्छा लगा। श्रीधाम मायापुर जब मैं गया, मुझे ये लगा कि मतलब दिस इज इट, मतलब यही जीवन है, और कुछ नहीं करना है। अगर जीवन में कुछ करना है, ये कृष्ण भक्ति में रहना है। और ये प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है, इसी में रह के ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, यही तो सब कुछ है, और इसके आगे और कुछ है नहीं। और जो भी है वो ठीक है, वो काम चलाऊ है, ऐसे पैसा कमाना है, ऐसा ये करना, वो ठीक है, वो अपने जगह है, वो मटेरियल लाइफ के लिए तो करना पड़ता है, वो ठीक है। लेकिन यही रियल चीज है, जो एब्सोल्यूट है, वो कृष्ण कॉन्शियस है, इतना मैं समझ गया था। और मैं गया वहाँ पंचतत्व, राधा माधव, अष्टसखी राधा माधव, श्री प्रभुपाद जी, नरसिंह देव भगवान, उनका दर्शन किया। महाप्रभु के लीला स्थली, योगपीठ, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उनका सब भजन कुटीर वगैरह देखा, बहुत अच्छा लगा। मायापुर में आया, वो इतना मनोरम एक्सपीरियंस था। वो कुछ दिनों तक तो उसका वो जो इफेक्ट रहता है, मतलब
मायापुर में आने के बाद भी 7 दिन तक तो मैं एकदम मतलब सरचार्ज होके वो जप कर रहा था भोर उठ के, और भोर ही उठ के मैं यूट्यूब पे सर्च करके मायापुर का जो लाइव मंगल आरती वो सब मैं देखा करता था, ऐसे करता था। लेकिन धीरे-धीरे थोड़े दिनों में फिर बैक टू ओरिजिनल निखिलेश मिश्र जो हम बद्ध जीव मैं हूँ, जो जैसे हॉग होता है उसका अटैचमेंट स्टूल की तरह होता है, तो फिर मैं वैसा हो जाता था कुछ दिनों में। तो ऐसा चलता रहा, तो मैंने कहा ऐसे कब चलेगा, मतलब ये साधु संग चाहिए। और श्री गौरगोविंद महाराज का भी मैं लेक्चर सुना था। मुझे मुझे गौरगोविंद महाराज बहुत पसंद थे, बहुत पसंद है। मैं क्योंकि जब थोड़ा मैं जुड़ा तो मैं उस समय गौरगोविंद महाराज का लेक्चर सुनने लगा। मतलब मुझे पता है नहीं सुनना चाहिए संभवतः, क्योंकि महाराज के लेक्चर में बहुत हाई होते हैं और अधिकार नहीं होता है मुझ जैसे न्योफाइट को साधारणतः, या उनके ग्रंथों में भी। एक बार अमृतेश गौर प्रभु ने भी मुझे चेस्टाइज किया था, एक बात मुझे याद है। एक साधु संग पुस्तक थी, वो मेरे बैग में थी। प्रभु जी ने मुझसे कहा कि तो किसने कहा ये पुस्तक पढ़ने के लिए? क्या आप शिल प्रभुपाद जी के सारे पुस्तक पढ़ चुके हैं क्या, जो अभी गुरुदेव के आप पुस्तक पढ़ रहे हो? तो तब मुझे समझ में आया कि यार पहले मतलब शिल प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी के जो पुस्तक हैं वो मतलब बेसिक लेवल से आके पीएचडी लेवल तक जाते हैं। जैसे श्रील गौर गोविंद महाराज भी बोलते हैं कि देयर इज एवरीथिंग इन श्रील प्रभुपाद्स बुक्स बट दे आर इन सीड फॉर्म। तो श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकें सब कुछ होते हैं, लेकिन गौर गोविंद महाराज के पुस्तक जो है वो मतलब वो सिर्फ पीएचडी लेवल, मतलब वो बहुत डीप जाते हैं। तो वो मतलब अधिकार नहीं होता है बद्ध जीवों को, तो वो समस्या हो जाता है। तो एक बार परम पूज्यपाद हल्दर महाराज भी बोलते थे कि जो बहुत प्रिंटिंग प्रेस हो गए, बहुत कुछ हो गया, इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि नूतन भक्त बोलेगा मैं दानकेली कौमुदी पढ़ूंगा या फिर मैं उज्जवल नीलामणि पढ़ूंगा, तो ये बहुत समस्या है क्योंकि उसका अधिकार नहीं है उधर। तो एनीवे मैं कुछ सुना था गौर गोविंद महाराज से, तो मैं बहुत अट्रैक्टेड था, तो उनका लेक्चर मैं सुनने लगा। और उसके बाद मैं सोच रहा था कि इस्कॉन भुवनेश्वर जाता हूँ। फिर मतलब अभी तो मुझे साधु संग है नहीं, कुछ नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस्कॉन भुवनेश्वर जाता हूँ। तो मैं मंदिर गया। ग्रेजुएशन बस खत्म ही हो रहा था, तो मंदिर में गया मुझे बहुत अच्छा लगा। इवनिंग भगवत गीता क्लास अटेंड किया, मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम क्लास अटेंड किया। ऐसे 2-4 दिन 3-4 दिन में अटेंड किया। चौथे दिन एक प्रभु जी मुझे बोले कि मार्जना करना है क्या, मार्जना सेवा? मैंने कहा प्रभु जी बिल्कुल करूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य होगा। तो लेकिन थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि मार्जना करके जाऊंगा तो फिर रात को घर पहुंचते पहुंचते 11 हो जाएगा। तो मेरे माता पिता जो है वो 10 बजे सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन सिस्टमेटिक लोग हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा-सा घर में पूछता हूँ, तो माता-पिता से पूछा और उन्होंने कभी अपोज़ नहीं किया। उनको सब पता है मैं इस्कॉन आता हूँ, मायापुर गया हूँ, वो सब पता है, वो कभी अपोज़ नहीं करते कभी। मैं बहुत फ्रैंक में बोल देता हूँ सब कुछ, वो कभी अपोज़ नहीं करता। और कई बार तो मैं खींच के उनको, मेरी माँ को ले आता हूँ कि बैठो यहाँ प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनो। अब वो बोलती है कि नहीं मुझे रसोई करना है, कुछ करना है, लेकिन मैं खींच के बिठाता हूँ और सुनाता हूँ। तो ऐसा होता है, वो कभी अपोज़ नहीं करते। तो मुझे मार्जना के लिए बोले तो मैं आ गया और मार्जना किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा, मतलब ये मुझे सेवा करके मुझे इतना अच्छा लगा। 8:30 बजे हम मार्जना शुरू करते थे। 7-8 भक्त लोग थे, उनमें एक भक्त थे श्रीपाद विजय गोविंद प्रभु जी, श्री भक्ति गौरव नारायण महाराज के शिष्य। वो इनिशिएटेड थे और हम सब तो थे वो इनिशिएटेड नहीं थे। तो हम सब मिलके वो सेवा करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और मंदिर में करते थे, ऑल्टर में क्लीनिंग किया करता था। और उसके बाद जो है वो 9 बजे के बाद हम क्या करते थे कि राधा गोपीनाथ जी के पास जाते थे, वहां से मार्जना करते थे। और एक व्यक्ति जो है वो जो श्रील गौर गोविंद महाराज का स्थान है और श्रील प्रभुपाद जी का भजन कुटीर, वहां जाके मार्जना करता था। तो एक वो जो हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट उस समय हुआ, मतलब ये जो कली के एजेंट है, ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं, ये लोग अपना रास्केलडम दिखाते रहते हैं। तो ये गौर गोविंद महाराज जी के जो समाधि वो तोड़ दिया गया। और मुझे इतना हार्ट ब्रेकिंग था उस दिन, क्योंकि उसके पहले दिन जो है वो मैं ही वहां पे मार्जना करके गया था। हर रोज एक व्यक्ति आके मार्जना करके जाता है, एक व्यक्ति। तो उसके पिछले वाले रात मैं मार्जना करके गया था वहां। और अभी मैं दोपहर को सुन रहा हूँ क्या कि ऐसा हो गया वहां पे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये कली की बात है, ऐसा होता रहता है। तो बुरा लगा। उसके बाद वाले दिन आए मार्जना करने के लिए और ऐसा चल रहा था। ऐसे हल्दर महाराज आए, परम पूज्यपाद हल्दर स्वामी महाराज। और महाराज उस समय गौर गोविंद महाराज की जो वो स्थान था वहाँ पे एक अम्ब्रेला रखे, कुछ फूल रखे और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह किए। हम देख रहे थे। मुझे एक व्यक्ति मार्जना करते समय, वो मेरे सीनियर हैं, वो बोले थे देखो मतलब जिसके हृदय में गुरु भक्ति होगा ना, वो मतलब वो किसी भी सिचुएशन में वो सेवा करेंगे। हम भी समझ रहे थे कि महाराज को भी कितना कष्ट हो रहा होगा कि उनके गुरुदेव का स्थान है, ऐसा हो गया है, लेकिन फिर भी महाराज मतलब वो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं और बहुत
मतलब उनको भी दर्द हो रहा होगा, लेकिन फिर भी वो सब कर रहे हैं, तो हम देख रहे थे ये सब, बहुत अच्छा लगता था। मार्जना के समय कई बार वैष्णव लोग भी आते रहते थे, जैसे श्रीपाद विदग्ध माधव प्रभु जी कई बार आते थे, हरि कथा बोलते थे, श्रीपाद जद्दूमणि प्रभु जी आते थे, वो ऐसे बोलते थे कृष्ण के बारे में, ऐसे बोलते थे। अमृतेश गौर प्रभु जी कई बार आते थे, तो ऐसे कई बार उनसे मिले हैं उस समय, और वो ऐसे बोलते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और मुझे याद है जब मैं मार्जना शुरू किया पहले दिन, तरुण गोविंद प्रभु जी मुझे एक बात बोलते थे कि कृष्ण का मंदिर मार्जना मतलब हमारा हृदय मार्जना। तो ये स्टेटमेंट मुझे याद है, कृष्ण का मंदिर मार्जना कर रहे हैं मतलब अपना हृदय मार्जना कर रहे हैं। और एक बात मैं बोलूंगा, और फिर मैं कृष्णावती प्रभु जी के गीता क्लास में जाता था। तो ये कृष्णावती प्रभु जी के साथ मुझे 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 बहुत अच्छे लगते थे कृष्णावती प्रभु जी, क्योंकि पहली बात तो गौरगोविंद महाराज के शिष्य हैं, जो कि जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। और कृष्णावती प्रभु जी मतलब उनका एक पर्सनैलिटी एक ऐसा है कि मतलब बहुत ही डिग्निफाइड पर्सनैलिटी, मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे बोलते थे मतलब प्रभु जी ऐसे बोलते थे। पहला क्लास गया था तो एक माता जी, वो अब उनके क्लास में तो सारे यूथ ही आते थे, लेकिन एक माता जी आके बैठी हुई थी उस समय साइड पे, तो उन्होंने कुछ उल्टा पल्टा प्रश्न पूछ लिया, थोड़ा सा उल्टा प्रश्न था, मैं समझ जा रहा था कि थोड़ा सा उल्टा पल्टा, तो प्रभु जी ने ऐसा बात बोला, वो एकदम रोड के साइड पे हम क्लास कर रहे थे, बोले वहां पे तुम्हारा बेटा अगर वहां पे ट्रक के नीचे कुचल के मरना होगा, तुम बचा सकते हो क्या? हम लोग यार मतलब क्या बोल रहे हैं यार, ऐसे हैवी बात हो। तो मैं समझ गया था बहुत डिग्निफाइड है, मतलब वो ये कि नहीं कोशिश कर रहे थे कि मतलब आ, कृष्ण भक्ति सब कुछ है, इसी में आना चाहिए, ये ज्यादा और किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। परिवार वरिवार सब ठीक है, लेकिन शरीर की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि करना चाहिए, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन कृष्ण भक्ति ही मूल है। तो इसे गया कृष्णमूर्ति प्रभु जी का क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक बार प्रभु जी बोलते थे कि कैसे श्रील सनातन गोस्वामी का वो पास टाइम वो आदमी, वो ब्राह्मण व्यक्ति शिव जी स्वप्न में बोले कि अगर धन चाहिए श्रील सनातन गोस्वामी के पास जाओ। तो श्रील सनातन गोस्वामी के पास गए और धन के लिए पूछे, तो सनातन गोस्वामी बोले कि वो डस्टबिन में पड़ा है परसमणि, उठा के जाओ। तो परसमणि लेके आए और फिर बोले कि ये परसमणि ऐसे कैसे दे दिए, और परसमणि को डस्टबिन में रखते हैं क्या? वो इनके पास जरूर कुछ ऐसा वेल्थ होगा जो परसमणि से कहीं बेटर होगा। तो वापस आए और बोले कि देखिए महाराज, आप मुझे ठगिए मत, आप मुझे वो संपत्ति दीजिए जो आपके पास है, मुझे पता है वो परसमणि से बहुत ज्यादा सुपीरियर है आपके पास। तो बोले अच्छा वो चाहिए, तो एक काम करो, वो परसमणि जाके फेंक के आओ। तो फेंक के आगे, इंटेलिजेंट थे, फेंक के आगे और सनातन गोस्वामी हरि नाम दिया। उस समय कृष्णवती प्रभु जी मुझसे पूछे, मैं फ्रंट रो में बैठे था, वो पूछे कि तुमको अगर बोला जाता परसमणि फेंकने के लिए, तुम फेंक देते? मैंने कहा नहीं प्रभु जी। तो बोले ओके, गिव ए क्लैप फॉर हिज ऑनेस्टी। तो ऐसा था मतलब तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और एक प्रभु जी जिनको मैं बहुत लाइक करता हूँ वो है श्रीपाद शेषा साई प्रभु जी। प्रभु जी का क्लास में करता था, भगवत गीता क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगता था। प्रभु जी का जो गंभीर जो है और उनका जो धीर वो नेचर है, मुझे बहुत पसंद है। और एक बार मुझे याद है श्रीपाद अमृतेश गौर प्रभु जी मुझे बोले कि श्रीपाद शेषसाई प्रभु जी उनको पुरी जाना है, नीलाचल धाम जाना है, क्योंकि जो हिज होलनेस राधानाथ स्वामी महाराज आ रहे हैं कार्तिक यात्रा 2018 कार्तिक यात्रा पुरी धाम जगन्नाथ जी की कथा करने के लिए। तो महाराज जी वहां पे है, तो प्रभु जी जाएंगे हरि कथा सुनने के लिए, आप उनको लेके जाएंगे? मैं कहा बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बड़ा फॉर्चून है मेरा, क्योंकि मैं पहले ही प्रभु जी को बहुत पसंद करता था। तो प्रभु जी को लेके गया, दोनों साथ में गए। पहले नई नई मैं नया नया बाइक चला रहा था, लॉन्ग जर्नी कभी किया नहीं था। तो पिपीली में एक स्थान पे क्या है, मेरा थोड़ा पैर दुखने लगा, तो मैंने कहा प्रभु जी थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे, मेरा पैर दर्द हो रहा है। मैं रुका, तो प्रभु जी बोले हाँ ठीक है, तो वहां रुका। तो वो जो जगह है ना, मैं आज भी काम करता हूँ, मैं पिपीली में जाता हूँ उस लाइन में हमेशा, हर वीक में मैं 2-3 बार तो जाता रहता हूँ। पूरी साखियोपाड़ चंदनपुर पिपीली उस लाइन पे मैं काम करता हूँ। तो मैं जाता हूँ, उस स्थान को देखते ही मुझे याद आता है श्रीपाद शेषसाई प्रभु जी का। मैं याद आता है कि ये स्थान जो है प्रभु जी का चरण यहाँ पे पड़ा है, और मैं कई बार वहां पे रुकता हूँ और प्रभु जी को याद करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ। तो प्रभु जी मुझे बहुत पसंद है। प्रभु जी के साथ पूरी धाम गया, कुछ प्रसाद लिया, और प्रभु जी मेरे लिए भी कुछ प्रसाद लिए थे, मुझे याद नहीं था वो मेरे लिए ले रहे हैं। वो रात को जब मैं वापस आया, वो मुझे दिए और बोले कि ये अपने घर लेके जाओ, तो ऐसे बोले थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सभी भक्तों के साथ। और जितने महाराज लोगों को मैं सुना हूँ, बहुत मतलब ये प्रभुपाद जी की कृपा है। मैं कभी कभी नहीं सोचा था कि मैं कृष्ण के शुद्ध भक्तों के जो मुख कमल है उनसे श्रवण कर पाऊं। अगर आज मुझसे कृष्ण पूछे ना कि तुम क्या किए हो, कि क्या हुआ है तुम्हारे जीवन में अच्छा, तो मैं एक बात तो बोल ही सकता हूँ कि मैं कुछ अच्छा नहीं किया, सब बुरा ही किया है।
लेकिन एक बात है कि कृष्ण के शुद्ध भक्तों का जो वाणी है ना, वो इस कर्णरंध्र में गया है, ये मैं बोल सकता हूँ। और ये तो मतलब सत्य ये कृष्ण ही मना नहीं कर सकते। तो ये मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। और एक दो बात बोल के मैं अंत कर दूंगा। एक बात, श्रीपाद विजय गोविंद प्रभु जी जिनके साथ मैं मार्जना करता था, वो हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह देखते थे। वो बोले मेरे गुरुदेव हैं यहाँ पे, आप चलेंगे क्या? मैं बहुत बिल्कुल जाऊंगा। मैं गया, श्रीपाद और हिज होलिनेस भक्ति गौरव नारायण महाराज उनके चरण कमल में बैठा, तो उनसे 1 घंटा में श्रवण किया और मैं आया। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। और मेरा 2 रिग्रेट रहा था। पहली बात तो, एक बार जब मार्जना कर रहे थे उस समय क्या हुआ था कि मेरा ख्याल है जो लोग मार्जना कर रहे थे उनको परम पूज्यपाद हलधर स्वामी महाराज कुछ पुस्तकें दे रहे थे उस समय मुझे। लेकिन मैं उस समय था नहीं, मेरा नाम अनाउंस किया गया लेकिन मैं था नहीं। और मुझे इतना रिग्रेट हुआ उस दिन कि मैं मतलब मिस कर दिया वो अपॉर्चुनिटी कि हिज होलिनेस हलधर स्वामी महाराज के हस्तकमल से मुझे कुछ मिलता है, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर लिया। लेकिन वो क्या हुआ, मतलब जैसे कृष्ण ने वो डिजायर फुलफिल कर दी। जैसे वैष्णव लोग होते हैं, वो डिजायर ट्री होते हैं, उन्होंने फुलफिल कर दिया वो डिजायर। वो कैसा था कि जब भक्ति वेदांत लाइब्रेरी इनॉग्रेशन हो रहा था तो अमृतेश गौर प्रभु जी मुझे बुलाए थे उस दिन। और थैंक्स टू हिज ग्रेस जगत गुरु प्रभु जी मुझे कुछ सेवा दिए थे वहां पे उस दिन, तो मैं था उस दिन। तो उस दिन रात को जब क्या हुआ कि जब हलधर महाराज कुछ पुस्तकें दे रहे थे, उस दिन भी मेरा नाम अनाउंस किया। और उस दिन भी मैं मिस करने वाला था, मैं क्योंकि वहां पे जहाँ पे प्रसाद वितरण हुआ था मैं वहां पे था। और अमृतेश प्रभु जी आके मुझे बुलाए और फिर लेके गए। और हलधर महाराज जो थे वो उस समय फिर वापस मेरा नाम लेके फिर उन्होंने मुझे ग्रंथ दिया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। परम पूज्यपाद लोकनाथ स्वामी महाराज मंदिर में आए थे और जब वो खजा प्रसाद दे रहे थे, उनके हाथ से मेरा हाथ स्पर्श होना, ये मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। बहुत बड़ा बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। जब परम पूज्यपाद सुभाष स्वामी महाराज मेरे मतलब प्रसाद दे रहे थे क्लास के बाद, बूंदिया प्रसाद दे रहे थे, वो उनके हाथ से ग्रहण करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये वैष्णवों से वो मतलब एक कृपा प्रसाद ग्रहण करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में, मतलब ये वैष्णव की कृपा है। और मतलब और मैं क्या बोल सकता हूँ। और सबसे ज्यादा तो मैं बोलूंगा कि अमृतेश गौर प्रभु जी, उनका कंपैशन है कि जो भी है आज भी उन्हीं के वजह से चल रहा है। कि प्रभु जी कई बार फोन करते हैं, मैं आउट ऑफ साइनेस थोड़ा सा फोन नहीं करता हूँ, ये सोच के कि प्रभु जी व्यस्त होंगे, उनको प्रीचिंग करना है, सर्विस है। लेकिन प्रभु जी अपनी तरफ से फोन करते हैं और बोलते हैं कि मेरा जो समस्या है वो उसको हल करते हैं। और जब करने में जो समस्या है उसके बारे में पूछते हैं, उसके बारे में समाधान देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मैं कभी मतलब थैंक यू कभी मतलब पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये वैष्णव की कृपा बस मैं ये चाहता हूँ कि बना रहे। और प्रभुपाद जी की सेवा में, कृष्ण की सेवा में मतलब कुछ भी अगर हो सके तो मतलब ये मतलब उनकी कृपा बना रहे बस वैष्णव लोगों का, यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि अ, मतलब सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट कभी बनने का अवसर मिले तो बस ये मेरे लिए सब कुछ होगा। बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ। बस पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण बोल, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Thank you, Nikhilesh Prabhu, for sharing your realizations and how you came. Few questions I have which you did not mention. The devotee who gave you the book first time, who is he? ये सुरु जी, हाँ, ये सुरु जी, भक्तों का नाम। वो जो भक्त आपको बुक दी है, पहली बार 3 बुक लिया आपने, वो कहाँ, जी, कौन है वो? उनका नाम प्रभु जी था श्रीनिवास प्रभु जी। और श्रीनिवास। उनका नाम श्रीनिवास प्रभु जी था। वो भुवनेश्वर में मेरे ख्याल से थोड़े दिन के लिए रुके थे, तो फिर भुवनेश्वर में शिफ्ट हो गए। और मेरा श्रीनिवास आज आचार्य, के समय मैंने गृहस्थ भक्त हैं, क्या? गृहस्थ भक्त हैं वो। नहीं प्रभु जी, ब्रह्मचारी ड्रेस में थे। ओके। तो उस समय तो इतना नॉलेज था नहीं, मतलब तो पूछ भी नहीं पाए ठीक इतना। है। तो और दूसरी बार जो बुलाया आपको, बैठ के बात किए जो तुरंत बुक लेने वो के बाद? प्रभु जी, उनका नाम था भानु प्रभु जी, और वो अक्षय पात्र से थे। और मुझे उस समय पता नहीं था कि अक्षय पात्र क्या, मतलब कुछ पता नहीं था। लेकिन मुझे बाद में पता लगा। और उनके साथ भी मेरा इस समय कोई ये नहीं है, लेकिन मैं याद करता हूँ उनका नाम कि मतलब जो भी हो, ये प्रभुपाद जी की हाँ, कृपा है कि तो मैं अच्छा। आया उनके दौरान। तो ओके, ठीक है। श्रीनाथ, मुझे पता है श्रीनाथ जी,
श्रीनाथ प्रभु मुझे पता है, पर श्री आप बोले क्या? श्रीवास, हाँ, श्रीनिवास प्रभु जी। श्रीनिवास, ओके, तो ये और एक तो ठीक। तो अच्छा लगा आपसे सुन के आपके रियलाइजेशन और आपने जो जो अनुभूति किए हैं कृष्ण भक्ति में, उस चीज़ को आप बरकरार रखें। और ये हमारे जीवन में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, पर हम जनरली भूल जाते हैं, उस चीज़ को इतना प्राधान्य नहीं देते हैं। पर अगर उस चीज़ को याद रखा जाए और उसके प्रति हमारा प्यार, ग्रैटिट्यूड बना रहे, तो ज़रूर ही कृष्ण अपना मर्जी सावर करेंगे। तो मैं सबको बोलता हूँ अपना अनम्यूट कर ले सब लोग, और एक बार हम प्रभु जी के लिए, निखिलेश प्रभु का अच्छा के लिए सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे